Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Unfiltered Cupid. Once again I welcome all of you back to this session in which we are going to discuss all about the freshers or all about the first prof of BHMS. फर्स्ट प्रॉफ BHMS के जितने भी फ्रेशर्स हैं दे हैव लिटरली फिल्ड द इनबॉक्स विद द बुक्स दैट यू नीड टू फॉलो, द थिंग्स you need to know about your college, about BHMS life, and also the important YouTube channels that you can refer to as if you are thinking of getting great marks in your first year BHMS examination. So yeah, this video is going to be pretty much about all of those stuff. Now I was not posting any long videos from long because internship का schedule and with that PG preparation, it's seriously the combination is very lit and उसके अलावा time निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. But with that somehow I try to take out time for all of you because freshers, you all are what are the base, the building blocks of homeopathy. So you are the newbies and obviously you need to be taken special care of, and that is what this video is all about. So hi, my name is Diksha and I am an intern of Brij Kishore Homeopathic Medical College which is situated in Ayodhya. एंड आपको मैं अगर BHMS फर्स्ट ईयर के बारे में बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में जब भी बच्चे आते हैं ना, उनके दिमाग में एक चीज़ होती है या फिर उनको कॉलेज में ये पता रहता है कि फर्स्ट ईयर इफ़ यू आर फ्रेशर एंड आपके घर में कोई भी होम्योपैथी नहीं जानता है एंड नोबडी फॉलोज इवन होम्योपैथी, देन इट बिकम्स लाइक रियली tricky or for you to understand that what exactly are you going to learn in this course, because BHMS for newbies is extremely like very fresh field because we all obviously prepare for MBBS and हमें पता है वहाँ का setup कैसा है, क्या है, what all things are done there. But when you come to homeopathy, there are very less things which are known to people, and that is what is the motto of sharing this video. So first of all, I want to inform all of you that आपको होम्योपैथी में एडमिशन आपने ले लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल that you need to know one important thing, and that is the father of homeopathy. Okay, so Dr. Christian Friedrich Gottfried Samuel Hahnemann is known as the father of homeopathy and उनका बर्थडे 10th अप्रैल को, that is World Homeopathy Day पर सेलिब्रेट किया जाता है. Now who is Dr. Hahnemann? Dr. Hahnemann was basically a MBBS doctor, but just because he was not satisfied with the treatment procedures of allopathy and whatever they follow, he thought of changing his field and he brought into consideration or brought into the existence of this new pathy which all of us know as homeopathy. उनको लगता था कि उस ट्रीटमेंट प्रोसीजर से बहुत सारे लोगों को बहुत दर्द हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय बहुत बढ़ जा रही है, एंड दैट इज़ वाई ही ब्रॉट होम्योपैथी and he brought this new pathy for all of us. Now homeopathy, with homeopathy obviously the treatment is done with sweet pills and that is why homeopaths are known as मीठी गोली वाले डॉक्टर्स. Now फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है so first of all आप लोगों को कॉलेज से obviously ड्रेस कोड मिला होगा. ड्रेस कोड इज बेसिकली अ sheet of paper in which you all might have described all of the, I mean your seniors might have described all of the things that like whatever you need to wear, whatever the books you need to take, whatever the instruments that you need to take. So all of them combined are mentioned in that specific dress code what we call. अगर आपको वो कॉलेज से नहीं मिला है, I want all of you to please contact any of your seniors. When I say seniors, I mean seniors. You need to be a little, you know, nice while talking to them. और आप लोगों को उनसे ड्रेस कोड पूछ लेना है ताकि आप जब एडमिशन लो तो आपको एटलीस्ट व्हाट यू नीड टू वेयर दैट यू शुड बी knowing. Okay, now moving forwards, let's move on to the instruments that you need to buy in first year. ठीक है, तो usually the dress code that we receive and we also hand over to the students need to have a sphygmomanometer which is also BP instrument. ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑब्वियसली BP इंस्ट्रूमेंट, एंड वो आपको मर्करी वाला लेना होता है. एंड देयर आर मेनी गुड ब्रांड्स दैट यू कैन रेफर टू. आई एम नॉट स्पेसिफिकली टेकिंग नेम ऑफ द ब्रांड्स, मेरे पास जो है दैट इज ऑफ डायमंड. ओके, एंड नेक्स्ट यू नीड टू हैव अ स्टेथोस्कोप लेना है आपको, एंड वो भी मेरे पास डायमंड का है, वो मैंने दोनों साथ में लिया हुआ था फर्स्ट ईयर में. सो यू कैन टेक, आप बहुत ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो यू कैन इवन गो फॉर लेटमैन, बट अभी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू नीड टू हैव इज स्फिग्मोमैमोमीटर एंड स्टेथोस्कोप. अगर आपके
कॉलेज में नी हैमर बोला जाता है, देन यू शुड ऑल्सो टेक दैट, एंड ENT किट, बहुत सारे कॉलेजेस में ये दोनों चीज़ें भी बोली जाती है, बट एटलीस्ट दीज 2 थिंग्स यू नीड टू हैव. ओके, द नेक्स्ट सेगमेंट इज वी टॉकिंग अबाउट द बुक्स दैट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट्स टू बाय. नाउ फर्स्ट प्रॉफ में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, pharmacy, that is homeopathic pharmacy, then organon and materia medica. These 5 subjects are there and आपको इन सब की बुक्स लेनी होती है. So फर्स्ट ईयर में फॉर एनाटॉमी यू शुड गो फॉर BD चौरसिया. ठीक है, दिस इज द टेक्स्ट बुक, यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी. सो BD चौरसिया की जो टेक्स्ट बुक होती है, दिस इज अ वेरी नाइस टेक्स्ट बुक दैट यू नीड टू फॉलो. इवन MBBS स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉलो दैट टेक्स्ट बुक. वी ऑल्सो हैड दैट, एंड ये टेक्स्ट बुक आई want to tell you that anatomy के लिए जो बेस्ट टेक्स्ट बुक अवेलेबल है फॉर द फ्रेशियज, फॉर द न्यूबीज, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, दैट इज BD चौरसिया. देन द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक दैट यू कैन फॉलो फॉर फिजियोलॉजी, कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, यू कैन गो फॉर द टेक्स्ट बुक ऑफ Sembulingam. The Sembulingam text book that we have followed. There are other text book also which are available, but you can ask that to your seniors. Obviously, other text books that are available, you can ask that to your seniors obviously, but the वो कहते हैं ना एकदम जैसे typical text book that you need to follow, that is the text book of Sembulingam. Okay, and then moving on to the next subject, that is of homeopathy, that is homeopathic pharmacy. ठीक है, homeopathic pharmacy के लिए जो text book follow की जाती है in most of the colleges, that is Mandal and Mandal text book of homeopathic pharmacy. Okay, आपको ये टेक्स्ट बुक जो है वो Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, किधर भी मिल जाएगी. इफ यू वांट आई कैन शेयर विद यू द लिंक. आप लिंक DM कर दीजिएगा, और सॉरी कमेंट कर दीजिएगा, देन आई विल बी पोस्टिंग दैट इन द कमेंट. ऑल्सो द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक और नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट यू हैव इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. एंड नाउ फ्रेंड्स, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए 2 बुक है. ठीक है, फर्स्ट बुक इज R.E. Dudgeon की एफोरिज्म्स की बुक, दैट इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की टेक्स्ट बुक R.E. Dudgeon की. ठीक है, यू कैन हैव 5th और 6th एडिशन. ठीक है, दैट नेक्स्ट टेक्स्ट बुक इज टेक्स्ट बुक ऑफ A.K. दास. ठीक है, A.K. दास की जो टेक्स्ट बुक है, दिस इज पर्टिकुलरली जो एफोरिज्म्स है. अभी आपको नहीं पता एफोरिज्म्स क्या होते हैं, you'll get to know, but there are 2 टेक्स्ट बुक्स दैट यू नीड टू हैव. वन इज ऑफ R.E. Dudgeon and the second one is टेक्स्ट बुक ऑफ A.K. दास, जो कि 3 वॉल्यूम्स में आती है. नाउ अकॉर्डिंग टू मी, these 2 books are sufficient, but there is one more book of Dr. Nagendra Babu. Okay, and this textbook is also followed in many colleges. You can even go for that, but the textbook that I personally myself refer to are these textbooks that I am listing here. Next subject that you have is Materia Medica. Now Materia Medica के लिए आपके पास 2 टेक्स्ट बुक होनी चाहिए. The first one is the OG Ellen Keynotes. Ellen Keynotes Materia Medica HC Ellen ने लिखी हुई है, वो आपके पास होनी चाहिए. And the second text book that you need to have is the textbook of S.K. Dubey. Now S.K. Dubey की जो Materia Medica की text book है, that has absolutely very nice description of all the drugs, and most importantly वो आपके examination point of view के लिए तो यार क्या book है. मतलब अगर आप S.K. Dubey examination की आंसर शीट में as it is लिख के आ जाओ ना, nobody is going to like cross your answers, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी. इतनी legit मतलब अच्छी टेक्स्ट बुक है वो. सो S.K. Dubey की टेक्स्ट बुक इज वेरी नाइस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑल्सो दैट इज वेरी लाइक ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी है. उसके अलावा एलन कीनोट्स वो तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो जो टेक्स्ट बुक है एलन कीनोट्स की, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू लाइक गेट इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरिया मेडिका, वो भी कीनोट्स फॉर्म में. मतलब जो स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है ड्रग्स की, वो सब एलन कीनोट्स में मेंशन की गई है. तो 2 टेक्स्ट बुक फॉर मटीरिया मेडिका दैट हैज बीन मेंशन्ड आर एलन कीनोट्स एंड S.K. Dubey. नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट यू हैव इज, I'm sorry, you do not have any subjects. We have already discussed all the 5 subjects. So मैं एक बार फिर से सारी टेक्स्ट बुक बता देती हूँ. फर्स्ट वन इज एनाटॉमी, जिसके लिए आपको लेनी है BD चौरसिया की टेक्स्ट बुक. सेकंड वन इज फिजियोलॉजी, यू कैन गो फॉर Sembulingam. थर्ड सब्जेक्ट इज होम्योपैथिक फार्मेसी, जिसमें आपको मंडल एंड मंडल की टेक्स्ट बुक खरीदनी है. अ टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी बाय मंडल एंड मंडल. दिस इज ऑब्वियसली अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट. नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक है दैट इज ऑफ मटीरिया मेडिका, एंड आपको उधर एलन कीनोट्स और S.K. Dubey लेनी है. एंड नेक्स्ट टेक्स्ट बुक इज ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट. एंड विद दिस यू नीड टू हैव A.K. दास की टेक्स्ट बुक, R.E. Dudgeon की एफोरिज्म्स वाली बुक, एंड नेक्स्ट इज Nagendra Babu, text book of Nagendra Babu, and all these textbooks are followed in most of the colleges, and these textbooks are the best that you can have if you are starting your first year in BHMS. Okay guys, so now that we have discussed the instruments, the books, let's move on to the important YouTube channels that you need to follow अगर आप फर्स्ट ईयर BHMS के स्टूडेंट्स हो और आपके पास उधर से क्या क्या कंटेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं. ठीक है, सो
चैनल दैट यू कैन ऑब्वियसली फॉलो इज ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस में आपको फिजियोलॉजी के बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे. ऑल्सो डॉक्टर नजीब फिजियोलॉजी लेक्चर्स आर वेरी नाइस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. ओके, एनाटमी के भी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि अवेलेबल है. वी हैव लाइक गिवन द डिस्क्रिप्शंस. इवन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बी डी चौरसिया की जो टेक्स्ट बुक है ना, देर इज अभी QR कोड आ गया होगा, आई डू नॉट नो, देर इज अ स्पेसिफिक लिंक वेयर विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट एंड उसके वीडियोज अवेलेबल है. सो श्योरली यू कैन गो फॉर दैट. दैट इज रियली गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल. नाउ वी आर डन विद फिजियोलॉजी एंड एनाटमी. नाउ मूविंग ऑन टू होम्योपैथी, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देर इज वन चैनल, इट्स नेम इज इनसाइड ऑर्गेनॉन. ओके, आई एम द वन जिसका वो चैनल है. देयर आर लिटरली लाइक 27K सब्सक्राइबर्स देयर एंड उसमें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक होम्योपैथी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी. ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड आर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन ऑल द लाइक एग्जाम बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सारी चीज़ें नोट्स के हेल्प से एक्सप्लेन की गई हैं. ऑर्गेनॉन, मटीरिया मेडिका, मैंने जो भी टेक्स्ट बुक लिस्टेड की है आपके सामने, उन्हीं के हेल्प से मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं. तो प्लीज, आई एम नॉट जस्ट प्रमोटिंग माई चैनल. ऑब्वियसली व्हेन यू विल गो टू योर कॉलेज, योर सीनियर्स विल ऑल्सो टेल यू अबाउट दैट, बट ऑब्वियसली यू कैन थिंक ऑफ दिस चैनल दैट इज इनसाइड ऑर्गेनॉन एंड आप इसको अभी फॉलो कर लो. मैं आपको इस वीडियो के जो कैप्शन है, आई मीन थंबनेल, क्या कहते हैं उसको, कैप्शन है, उसमें आपको मैंने चैनल टैग कर दिया है. एंड देयर इज वन मोर चैनल दैट इज मेडिक्योर बॉडी. उसमें फिजियोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं एंड वो भी मैं इधर टैग कर दे रही हूँ. एंड मेडिक्योर बॉडी भी आप फॉलो कर लो बिकॉज फिजियोलॉजी लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. एनाटमी के लेक्चर्स अभी उस चैनल पे अवेलेबल नहीं है, बट फ्रॉम द सेकेंड ईयर आपके पास उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे. सो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट. नाउ जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है, मटीरिया मेडिका है एंड होम्योपैथिक फार्मेसी. ऑल्सो एक और सब्जेक्ट होता है होम्योपैथी में एंड दैट इज रिपोर्टरी. ये चारों सब्जेक्ट के वीडियो आपको सिर्फ एक चैनल पे मिल जाएंगे एंड दैट इज इनसाइड ऑर्गेनॉन. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू द न्यूबीज, प्लीज गो फॉर इट, प्लीज फॉलो इनसाइड ऑर्गेनॉन बिकॉज मैंने खुद अपनी सारी पढ़ाई जितनी भी की है, मेरे पास जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैंने वो सब इनसाइड ऑर्गेनॉन पे कन्वे करने की कोशिश की है. सो इनसाइड ऑर्गेनॉन को आप फॉलो कर लो. दैट इज लाइक होम्योपैथी में अगर आप एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हो एंड आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है, और एलन की नोट्स की अल्फाबेट A से लेके अल्फाबेट Z तक जितनी मेडिसिन हैं उन सब को एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस भी उसमें प्रेजेंट है. सो आई डोंट थिंक यू नीड मच मोर इन्फॉर्मेशन, राइट? सो एक काम करो, इनसाइड ऑर्गेनॉन को फॉलो करो एंड आप अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो. ओके, so yeah, that's it about today's session in which we have discussed a bit introduction of homeopathy, about the father of homeopathy that you need to know. We have discussed the instruments that a first year student might have, all of the textbook that first year students must follow if you are preparing for your obviously exams, right? And the YouTube channels that you can refer to and you can thank me later for Inside Organon and Medicure Buddy. Guys, these channels are absolutely lit. I myself has referred to these channels. मैंने उस चैनल पे पढ़ा के वीडियोस डाले हैं, बट मेरे को कभी पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने होते तो अभी भी मैं ऑर्गेनॉन का लेक्चर खोल के फिर एक दास की टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करती हूँ. सो these lectures are so much useful that you can obviously go for that. And yeah, with this I am ending this session. I hope this video was very useful for you all. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने प्लीज न्यूबीज के साथ, सारी न्यूबीज के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा.